Hello everyone. Today we are going to take the revision of lesson number 3. Okay. In previous lecture, we have taken the revision of lesson number 1 and 2. Okay. Today we are going to continue with the revision of lesson number 3. Okay. So let us start. If you stay near the coast for some time, you will realize that seawater is sometimes very close to the coast, while at other times it is far away from the coast. जब आप किनारे पे बैठते हो तो देखो कि कभी कभी आपके किनारे पे पानी आ जाता है तो कभी कभी दूर चला जाता है। ये सीन आपको अगर सी कोस्ट पे हो आप तो बराबर बीच पे अगर जाओ तो आपको ये जो सीन है वो जरूर दिखाई देगा। एंड वी कॉल दीज मूवमेंट्स ऑफ द सी वाटर टाइड्स। हमें ये जो सी वाटर का मूवमेंट्स है इसे हम कहते हैं टाइड्स। ओके, so there are the two kinds of tides. Okay, first one is the high tide and second one is the low tides. So tides are classified into two types, that is the high tide and low tide. Okay. So tides, let us start with the meaning of the high tide. Sometimes the seawater is very close to the coast and sometimes it is far away from the coast. You know that. So when the seawater is very close to the coast, then it is called as the high tide. ये देखो जब पानी ये बहुत किनारे पे आपको दिखाई दे रहा है दो से, ठीक है, यू कैन सी दिस पिक्चर एंड ऑब्जर्व, जहाँ पे पानी एकदम किनारे से नजदीक है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द हाई टाइड. ओके, the sea water, when the sea water is very close to the coast, it is called as the high tide, and when it is far away from the coast, then it is called as the low tides. Okay, understood? फिर टाइड क्या होता है? सी वाटर की जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज द टाइड, एंड टाइड इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द हाई टाइड एंड लो टाइड. व्हाट इज मीन बाय हाई टाइड? ओके, when the sea water is very close to the coast, then it is called as the high tide, and when it is very away from the coast, then it is called as the low tide. Okay, so let us discuss the cycle of high tide and low tide. So tides are the movement of sea water occurring daily and regularly. ये जो tides आते हैं, it is a natural movement. जैसे डेली आपका जो रूटीन होता है कि अर्ली यू जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग, यू जस्ट ब्रश योर टीथ, आफ्टरवर्ड you just take a bath. Okay, you takes a bath, afterward you take a breakfast, afterward you goes to school. Okay, when there is a lunch time, you just take a lunch. During the lectures you just attend the lectures and study there. Okay, so these are the timing. Actually आपका जो लाइफ चलता है वो टाइमिंग के हिसाब से, जब आपका टाइमिंग जो होता है स्कूल एंडिंग का, स्कूल ओवर होती है, फिर आफ्टरवर्ड यू जस्ट गो टू योर होम, अगेन यू जस्ट गेट फ्रेश. ओके, afterward you will also have some breakfast or what something, again you just do your homework. Okay, then I think some students also go for playing. So that is actually the time. आपका जैसे ये रूटीन चालू होता है डेली का, वैसे ही डेली आपका ये रूटीन है ना, डेली लाइफ है, वैसे ही डेली जो है टाइड्स आते रहते हैं. इट इज अ नेचुरल एंड डेली एंड ऑकर्स डेली. ओके, एंड रेगुलर. So the level of the sea water changes after a specific period of time, after every 12 hours and 25 minutes. Okay, the cycle of the high tides and low tides get completed. 12 घंटे के बाद ये जो साइकिल है ये जो है वो चलती रहती है. ठीक है, अब इसके पीछे साइंस क्या है? What is the science behind this one? Okay, the regularly occurring events of high tide and low tide appears to be quite simple and natural, and the tides are directly related to the sun, the moon, and the earth, and the gravitational and the centrifugal forces that interact between them. और ये जो टाइड्स आता है, ये जो मूवमेंट है सी वाटर का, उसके लिए जो रिस्पॉन्स, उसके लिए जो रीजन है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? The motion, the related
the motion or the interconnection between the moon, the sun and the earth. आपको पता है कि हमारा अर्थ जो है ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है ना, प्रेशर एक्सर्ट करता है. The pressure exerted by the force by the earth is called as the gravitational force. ठीक है, कोई भी चीज आप ये फेंको, ओके, it get back to the earth. That is just because of what? Gravitational force. यानी हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. ठीक है, कोई भी चीज को, that is just because of the gravitational force. So the sun, the position of the sun, moon and the earth, and the gravitational force and the centrifugal force. अभी centrifugal force क्या होता है वो देखेंगे कि वो important role play कैसे करता है. ठीक है, the force against the gravity is called as the gravitational force. अभी ये force, for example ये force यहाँ पे लग रहा है, आप उसको क्या करेंगे? उसके oppositely क्या कर रहा है? force apply कर रहा है. ये चीज देखो, ये यहाँ से नीचे आ रही है, आपने यहाँ से क्या किया? force exert किया. ठीक है ना, ये तो अदरवाइज आप अगर यहाँ पे ये नहीं रखते थे हाथ तो ये नीचे गिर जाता था. बट इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स अपोजिट द ग्रेविटी, देखो तो ये जो चौक है ये आपके हाथ में आ गया. समझ में आया? तो द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अभी इसका रोल क्या होता है? जब हम टाइट पढ़ेंगे यानी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सो the tides are directly related to the sun, the moon and the earth, the gravitational force and the centrifugal force. I hope you have understood the meaning of the gravitational force and the centrifugal force. So the force exerted by the earth is called the gravitational force, and the force which acts against the gravitational force is called as the centrifugal force. Okay. Now let us know the reason for happening of the tides. Okay, let us know. You know that everybody knows. हमने लास्ट जब ये लेसन डिस्क्राइब किया था तभी आपको ये पता है, ओके, कि मून इज वेरी क्लोजर टू द अर्थ. आपको पता है मून इज वेरी, आप अगर सोलर सिस्टम आपने पढ़ी है तो आपको पता है. ठीक है, मून इज वेरी क्लोजर टू द अर्थ because as it is a natural satellite of the earth, moon is very closer to the earth than the sun. sun जो है वो अर्थ से काफी दूर है और मून जो है वो अर्थ से काफी पास है, नजदीक है. ओके, सो hence its gravitational force becomes more effective than that of the sun. यानी ये जो मून है वो अर्थ के ऊपर क्या करता है? उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा है सन से. ठीक है, वो ज्यादा जो है अफेक्ट करता है. So tide occur due to the relative position of the moon, the sun and the earth. ये इसके पोजीशन के, इनकी पोजीशन जो है उसके वजह से जो टाइड जो है वो अर्थ पे होता है. सो या फिर सी में होता है. सॉरी, a place on the earth located at the opposite point of the place experiences high or low tide, also experiences high or low tide respectively. चलो ये समझते हैं हम. ठीक है, कि क्या होता है टाइड्स के दौरान, क्या होता है वो हम समझते हैं. ठीक है, आपको पता है कि ये जो मून है वो अर्थ के ऊपर क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है. तो उसके वजह से जो सी का पानी है वो मून की तरफ खींच जाता है. समझ में आया? तो सी का पानी है वो मून की तरफ खींच जाता है. अब मुझे बताओ, ये प्रेशर खींचने के वजह से एट द सेम टाइम ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अर्थ है वो भी एक्सर्ट होता है. ठीक है, अपना अर्थ जो है अपने तरफ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है. मून जो है वो अपने साइड से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है? ये जो पानी है अगर मून इस साइड से क्या कर रहा है? अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहा है. तो इसकी वजह से ये जो सी का पानी है वो मून की तरफ खींचता है. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया हो गया और बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, ये जो पानी है, ठीक है, ये देखो ये खींच गया इतना पानी. ठीक है, तो उसके अपोजिट यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो गया. अभी ये जो पानी है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये यहाँ पे खींचेगा क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटी से अपोजिटली एक्ट करता है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन
कि ये जो पानी यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया तो ये जो है ये कहाँ आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ क्या हुआ, हाई टाइड आया, ठीक है, डेवलप हुआ, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, पानी का कम हो गया, तो यहाँ पे क्या है, लो टाइड है। यानी जहां पे जो है ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा था मून का, वहां पे पानी खींच गया, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होगा, फिर हाई टाइड होगा, और यहाँ पे जो है जहां पे प्रेशर कम हो गया वहां पे लो टाइड होगा। तो इन दिस वे जो है हाई टाइड और लो टाइड होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून क्या होता है, वो जो हिस्सा पानी का अर्थ के जो सी में जो पानी है वो जो है मून की तरफ खींचने लगता है, फिर यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है क्या होता है कि ये जो पानी है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में और खींचने लगता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों साइड में हाई टाइड होता है, और जहां पे लो टाइड, लो प्रेशर है वहां पे डेवलप हुआ है, वहां पे लो टाइड होता है। तो अपोजिट साइड में जो है लो टाइड, और अपोजिट साइड में हाई टाइड। यू कैन सी नॉर्थ और साउथ में जो है वो हाई टाइड होगा, और ईस्ट और वेस्ट में देखो लो टाइड होगा। सो इन दिस वे द टाइड्स हैपेंस। हाई टाइड और लो टाइड क्यों होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, the next portion we will discuss the types of the tides, we will discuss in the next lecture. Till then, goodbye and have a nice day.